मुझे लगता है इसीलिए फिल्मों का ऐसी फिल्मों का बनना बहुत ज़रूरी है. The beauty of the story, it's like, the show must go on. I'm so grateful to know actors who choose to do such scripts. ऐसे फिल्में क्यों नहीं बनती? अभी ये बन रही है तो प्लीज़ जाइए थिएटर्स में देखिए. Emotionally and physically, this was the toughest experience ever of my life. एट द एंड ऑफ द डे एक ह्यूमन ड्रामा है, एक दो आदमियों के बीच एक रिलेशनशिप की बात है. देखने लगता है जैसे ग्रिम सब्जेक्ट है लेकिन बहुत ही फील गुड सा. Takes you to the emotional journey of characters. Extremely well performed by Satyajit. ये दिल से बनाई है फिल्म. I'm actually quite hopeful. हाउ डिड यू लाइक? Oh, I just want to say thank you to these talented people because we really need a film. We do need to understand how important it is for us to donate the organs, and at the same time, I wish Revati ma'am was here. Yeah. And it's like the beauty of the story. It's like the show must go on, but how there are a lot of efforts. You need people around you who can it's just too overwhelming for me because I've just watched the movie when it come out, and I'm so proud of Satyajit because I am so I'm like I'm so grateful to know actors who choose to do such scripts which is going to have that impact in the society and make this world a better place to live in. So thank you for this beautiful film, both of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. भाई Yeah. तुम्हें इतनी तारीफ मिल रही है. You know, I'm. It takes one to recognize another. Yeah. Maybe, but we've been friends since few years now, and I've always admired her work. And जो भी मेरे करीबी लोग हैं इंडस्ट्री में, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं चाहता था वो आके फिल्म देखें और अपनी दिल की बात जाहिर करें. उनसे ये जो सबसे करीबी दोस्त होते हैं ना, उनका यही रहता है कि वो मुंह पे बोल देते हैं अच्छा है तो अच्छा है, बुरा Please तो watch बुरा है. this film, guys, But, because this we need. Everyone is like, ऐसे फिल्में क्यों नहीं बनती? अभी ये बन रही है तो प्लीज जाइए थिएटर्स में देखिए, and I'm sure it's going to move you guys. And thank you to all the families who have taken such a tough decision to take this big step. Yeah. I know it's not easy. It's not. वो कहते हैं ना कि हम आपका दुख महसूस कर सकते हैं, but नहीं. That pain is totally different and you can't really explain what exactly it is. So thank you to those families who've been so brave. And this film is actually dedicated to all the families. It is. Yeah. So please, guys, just go watch, recommend people, and if you can, I don't know what the exact process is, which I'm going to find out. I'm going to post it on my social media. We'll share it. Please do. Thank you so much. Thank Really you. means a lot. Thank you. Now celebrate because you've made a great film. That's Sheila De Bora. Sheila of is the course. one man army pulling it all Congratulations, together, all alone, and And hats off to Anirban and Satya and everyone. Thank you so much. Thank you so much, Ashish. Seriously, the film is lovely. Thank you. It's- Thank you so much. बहुत ही अमेजिंग सा ट्रेलर है और बहुत ही प्यारी सी फिल्म है. बहुत अच्छा ट्रेलर है और मैं सत्या को बहुत सालों से जानती हूँ और आई एम सो हैप्पी फॉर हिम. दिस फिल्म इज़ when I saw the trailer, I was so like intrigued to know as to क्या होता है in the end. So I'm really excited to watch the film, and all the best to the entire team क्योंकि I think Satya really is such a beautiful actor, and finally he's gotten such a beautiful role जहाँ पे वो उसके shades आपको देखने को मिलेंगे. And I really hope like people watch this film and learn out of this character. So yeah, there he is. आप फिल्म की बात की जाए तो फिल्म बहुत ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है जिसके बारे में यूजुअली बात नहीं करते. ब्लड व्हाट डू यू थिंक ऑन पर्सनल बेसिस कि क्या वो बदलाव ला पाएगी? मुझे लगता है इसीलिए ऐसी फिल्मों का बनना बहुत ज़रूरी है. ज़िंदगी अगर आप देखेंगे, it's about his journey and how he overcomes that and still lives his life. I don't know what happens, but you should always live your life to the fullest, no matter what it is. और ऐसे फिल्मों की वजह से हमें we get motivated, and I really hope कि after people watching this movie they get motivated some way or the other and find a reason to live their life yet again.
लास्टली मान लो क्योंकि बहुत सारी कमर्शियल फिल्में इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, डू यू थिंक दिस फिल्म विल बी एबल टू सर्वाइव? It's not about to be able to survive or not. It's always about a good film. And I'm like, after watching the trailer itself, I called up Satya and I was like, listen, you are a part of a good film. और बहुत ज़रूरी है अच्छी फिल्में बनना जो लोगों के दिलों तक पहुंच सके, और जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगी फिल्म, उतना ही आई थिंक एज एन आर्टिस्ट हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वी आर हियर टू मेक स्मॉल डिफरेंस इन द सोसाइटी. अगर वो छोटू सा भी हम वो किसी के चेहरे पे खुशियाँ ला सके तो क्यों ना. आई रियली आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइज टू गो एंड वॉच दिस फिल्म, बिकॉज नॉट जस्ट बिकॉज सत्या इज़ अ गुड फ्रेंड, बट बिकॉज यू शुड वॉच द ट्रेलर एंड आई एम श्योर इफ इट मूव्स यू, प्लीज़ वॉच इट. सो फर्स्टली हमने IVF को लेकर फिल्म देखी है, ब्लड डोनेशन को लेकर देखी है, यहाँ पर समथिंग रियली अमेजिंग एंड रियली डिफरेंट. व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन? My expectations are that once people see the film, it will be a roller coaster ride for them emotionally. But once they step out of the theater, there will be a broad smile and this ray of hope in their eyes. Organ donation is something that we haven't spoken a lot about, but it is such a beautiful thing that, this film we are trying to celebrate humanity and hope and love in the purest form. Because आप अपने sorrow में, when you're going through the grief, you think about someone else and कैसे उनकी ज़िंदगी बच सकती है या बेहतर हो सकती है. अगर वो थॉट आपके अंदर है तो there's nothing like it. That's the most beautiful thing ever, and that's what the film talks about. And it's not just about that. It's about so many things, about the people who are fighting these battles quietly and the people who look after them. We are celebrating love in the realist, in the most human way. And I really can't wait you to see the film, and then you let me know what you think about it. Apart from this, you are playing a very important role in this. You are He's the guy who's suffering from yeah, the yeah. It's my first solo outing. Yeah. So how this journey has been independently for you as well? Independently, emotionally and physically, this was the toughest experience ever of my life. From losing all of a sudden 10 kgs within a month's time for the part, because when I signed the film, I had only 28 days. And you guys will tell me what you think about it. Do you think ये जो स्टोरी है या फिर ये जो फिल्म है वो उस तरह से बदलाव ला पाएगी सोसाइटी में? बिकॉज ऑर्गन डोनेशन को लोग इतना भी जैसे ब्लड डोनेशन या बाकी चीज़ों को लेते उतना नहीं लेते. अब मैं यहाँ पे बैठ के कोई प्रीचीनेस वाली बात नहीं करना चाहता, बट जस्ट टेल मी वन थिंग. वंस यू गॉन, आपका कोई नज़दीकी चल जाता है XYZ, तो जब वो कोई जाता है तो नहीं कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं या मेरे पापा, वो दोस्त की बॉडी है, वो मेरे पापा की बॉडी है. दैट्स व्हाट पीपल यूजुअली से. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? द लाइफ इज़ गॉन, आत्मा जा चुकी है, बट आपके अंदर जो प्राण था वो जा चुका है. बट आफ्टर दैट, इफ these things can be used for the betterment of the society, if people can live because of that, there's nothing like that. I mean, that is the most amazing, highest form of humanity one can exhibit. To you and your team, what a film, what a beautiful film. मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में इतनी खूबसूरत फिल्म, इतनी इमोशनली और इतनी आपको जो अंदर तक झकझोर के रख दी, वैसी शायद फिल्म नहीं देखी है. आपकी क्या फीलिंग है जब ऐसे रिएक्शंस आपको? देखिए, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज़ व्हाट वी वांटेड. ऐसे देखिए, ये मेरी दुनिया नहीं है. आई एम अ डॉक्टर. मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है. सो कीपिंग दैट इन माइंड, मैं शीला को रियली क्रेडिट दूंगा कि उसने मुझे सपोर्ट किया. कि मैंने बहुत प्रोड्यूसर्स के बातें की. आई ट्राई टू गेट द फिल्म आउट फॉर ऑलमोस्ट लाइक 4-5 years, कुछ नहीं हो रहा था. सो द फैक्ट दैट इतना फेथ मिला, इतना ट्रस्ट मिला, एंड देन he let me have the freedom to put the film the way I wanted, and the fact that उसके बाद appreciation मिल रही है, I mean, what can I ask for more? That is the best thing. So yeah, I hope people will see the beauty of because at the end of the day एक human drama है. एक दो आदमियों के बीच एक relationship की बात है, how this changes over time, and सब I hope everybody identifies with that. शीला, बहुत बड़ी बात है कि आपने मतलब ये खूबसूरत निकल के आया है. उसके पीछे सबसे बड़ा तो आपने उसको सपोर्ट सिस्टम दिया है. अब जब इस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, हर कोई इतना पसंद कर रहा है, इतनी खूबसूरत निकल के आई है फिल्म, आपको क्या फील आ रहा है अभी? फीलिंग क्या? जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, जब अनिरुद्ध ने पहली बार ये हमारे घर पे नरेट किया था, मेरी वाइफ को जो है, तो हमारे आंखों में आंसू आ गए थे. एंड वी आर लाइक कि ओके, वाओ, दिस विल मेक अ ग्रेट फिल्म. तो हमने ये नहीं पता था कि वी विल एंड अप मेकिंग दिस फिल्म.
But then after that, like we were trying to find a director for that film, but we were not finding the right person, and we were like, anyone, you have lived this story, you know this inside out, you are like, and you are the right person for this. Anyone initially was a little bit reluctant, but then he went back and he was so well prepared. He took classes in filmmaking. मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, जब he came, like मैंने बहुत सारे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बट द लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, वो 5,000-7,000 पूरे ड्राइंग्स बना के लाया, मतलब ये, मतलब जो है द फुल फिल्म वाज लाइक स्टोरी बोर्डेड बाय हिम पर्सनली, जो है सो, एंड ही एग्जैक्टली न्यू जो है, ऐसा क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत ही कम लोगों को जो है देखा मैंने, मतलब मैं डरा हुआ था। डायरेक्टर अरे पहली अनिमल बार फिल्म कुछ में कर- पहले अपना नाम भी नहीं डालना चाहता था जो है, बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम रियली ग्लैड, जो है आई होप ऑडियंस विल आल्सो कनेक्ट विद इट, अच्छा लग रहा है जो है लोगों को। बहुत सारे हिट्स आपने मतलब डाउन किए हैं, मतलब लिरिक्स भी लिखा है, म्यूजिक का काफ़ी कुछ उसमें वो है, मतलब इतनी सारी चीज़ों में कैसे देखिए, एक सम अमाउंट ऑफ लक इन्वॉल्व है। जैसे ये कहानी जिसकी है, जिस बंदे की है, उससे मेरी मुलाकात वाज अ चांस, और वो घर जा रहा था, उसकी राइड नहीं आई थी, तो मैंने कहा कम लव, आई विल गिव यू अ राइड। अदरवाइज इज़ अ वेरी क्वाइट गाय, ज़्यादा बातें नहीं करता है। तो मेरी गाड़ी में बैठा और हम लोग ड्राइव कर रहे थे, और मुझे अपनी कहानी सुनाने लगा, एंड यू नो आई स्टार्टेड क्राइंग। उसकी कहानी इतनी सुंदर। सो बहुत कुछ लक के बारे में होता है। जैसे आई हैव आई एम अ क्लासिकल गिटारिस्ट, मेरे को गिटार में बहुत पसंद है, तो आई प्ले क्लासिकल गिटार, आई हैव टेकन लेसन्स इन वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक। अब अचानक वो काम पे आ गया, दैट टू ट्राई एंड कंपोज थिंग्स, बिकॉज जब लिख रहे हो, यू सी द सिचुएशंस, यू कैन सॉर्ट ऑफ डिसाइड कि हाँ, यहाँ सॉन्ग आएगा, तो उसके अराउंड यू स्टार्ट कंपोजिंग। तो बहुत कुछ लक के बारे में भी होता Destiny है। का role तो है। हाँ। Now when me and Aniban, like we've known each other for like 10-12 years maybe, now when we look back I think that we were destined to meet, because हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, it was a very चांस नहीं। chance, so have we are destined to make this film together, so yeah, Destiny का तो एक बहुत बड़ा वो है। आई एम श्योर आप बहुत सारे अवार्ड्स इंतजार कर रहे हैं। वो ठीक है, like that is like a by product, देखिए, सबसे बड़ी अवार्ड होगी इफ पीपल वॉच द People फिल्म watch एंड गेट द मैसेज। सीरियसली, मैं आपको ये एक कहानी है, मैं आपको 10 कहानी सुना सकता हूँ ट्रांसप्लांट के ऊपर। आपने जो फाइनल फ्रेम देखी, उसमें जो 2 बंदे थे, उनका भी एक कहानी है, एंड सो हर एक ये जो ट्रांसप्लांट होती है, इसका एक डोनर होता है, एक रेसिपिएंट होता है, और उनकी एक रिलेशनशिप जो होती है ना, वो एक कहानी है। सो इट इज़, बट द ब्यूटी ऑफ दिस इज़ कि जो मतलब ये दिस इज़ द बेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। क्योंकि क्या है ना, इफ समबडी इज़ इन ग्रीफ, एक क्राइसिस में है, उसका कोई अपना खो गया है, एंड दे स्टिल फाइंड इट विद इन देमसेल्फ कि किसी और के बारे में सोचे, किसी और की भलाई में सोचे। एक ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर ने लिखा था कि चेन्नई में एक डी लेबरर था, और वो तो उसका घर भी नहीं था, वो रास्ते पे सोता था। उसका एक 10 साल का बेटा था, सर पे कुछ लगा, ही डाइड। और इमेजिन दिस गाय जिसके पास कुछ भी नहीं है, एंड ही हैज़ लॉस्ट द ओनली थिंग ही हैज़, व्हिच इज़ हिज सन। उसको जब अप्रोच किए ऑर्गन, उसने हाँ, मेरा बेटा तो नहीं है, किसी और को फ़ायदा है। तो ये मनुष्यता जो है ना, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मनुष्यता, किसी और ह्यूमैनिटी, किसी और के बारे में सोचा। तो आई होप पीपल गेट दैट मैसेज, दैट विल बी द बिगेस्ट पे ऑफ। थैंक यू फॉर मेकिंग सच अ ब्यूटीफुल फिल्म। थैंक यू। movie was very good and the performances were very good. देख के लगता है जैसे ग्रिम सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ही फील गुड सिनेमा है, और बहुत उम्मीद भरी कहानी है, बहुत होप देती है आपको नाइसनेस के प्रति, ज़िंदगी के प्रति, और देखनी चाहिए। आई थिंक एंड ऑल द मेकर्स जो भी इन्वॉल्व हैं, उनको शुक्रिया कि ऐसा सब्जेक्ट उठाया और बनाया। ऐसा सिनेमा चाहिए आपको। थैंक यू। Yeah. Oh, it's a very interesting and a very touching film. It's a unique film. A subject which normally you will not see or hear about. मैंने ये इस तरह के सब्जेक्ट पे मैंने फिल्म नहीं देखी। शायद पिछली फिल्म हमने आनंद देखी थी, जो ऐसे सब्जेक्ट पे आगे बढ़ी थी, और ये अब बहुत डिटेल में, बट विदाउट मेकिंग इट मोरोज और टू sad. It takes you to the emotional journey of characters. Extremely well performed by Satyajit.
And Revati ji, she was unbelievably, I would say, that shoulder on which the film carried. और ऑर्गन डोनेशन के ऊपर इतना इम्पोर्टेंट मैसेज और ऑर्गन डोनेशन के बारे में इतनी बड़ी बातें शायद हमको पता होता है पर हम इतना फोकस नहीं दे पाते हैं. To bring to the fact that one donation can save 7 lives. And फिल्म देख के एक ही बोलूँगा जो उनका डायलॉग था कि ज़िंदगी बहुत कुछ मांगती है पर फिर भी जीना पड़ता है. तो ये है ज़िंदगी, देखिएगा ज़रूर. सुंदर फिल्म, सुंदर परफॉर्मेंसेस. थैंक यू सो मच. यार मैं अभी भी प्रोसेस कर रहा हूँ क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्होंने उठाया है और इसको पहले तो मैं प्रोड्यूसर्स की दाद देना चाहूँगा, शीलादित्य जिसने बैक किया है इसको, बिकॉज ये सब्जेक्ट इसको कमर्शियली पेश करना, इतनी हिम्मत दिखाना, उसकी दाद देनी पड़ेगी. मुझे बिल्कुल पता नहीं था और जब एक डॉक्टर लिखता है ये कहानी तो मुझे एक 360 पर्सपेक्टिव मिलता है कि एक ग्रीफ काउंसलर का पर्सपेक्टिव है, एक डॉक्टर का पर्सपेक्टिव है, एक पेशेंट का पर्सपेक्टिव है और एक डोनर का पर्सपेक्टिव है. तो इन सभी पहलुओं से जब एक कहानी मैं देखता हूँ तो इट्स वेरी मूविंग बिकॉज इट्स you know, and the performances, I don't have words to describe. I mean, Revati ji, Satya, Mrunmayee, such even smallest scene, even that the girl who played Revati ji's daughter, she has one scene but she's brilliant. So the casting and you know, it shows that पूरे दिल से बनाई है फिल्म और दिल से एक रियल लाइफ स्टोरी पे. मैं तो जानता भी नहीं था कि रियल स्टोरी है और इसको इन्होंने अडेप्ट किया है. बट इट्स अ वेरी वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी. मुझे कई मोमेंट्स पे गूज़बम्स आए, मुझे कई मोमेंट्स पे खुद पे रिफ्लेक्ट हुआ कि यू नो, एंड आई एम डेफिनेटली, मैंने नहीं किया अभी तक, मैं जाके द फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज़ आई एम गोना डोनेट ऑल माई ऑर्गन्स. बिकॉज जैसे फिल्म में कहते हैं कि एक ज़िंदगी से 7 जानें बच सकती हैं. when you donate, at least 7 lives can be saved, and it's really a beautiful film, and kudos to the whole team. Thank you so much. Thank you. सो फर्स्टली ए ज़िंदगी एक बहुत ही अलग सा टॉपिक जिसके बारे में अक्सर जिक्र नहीं होता, उस टॉपिक को लेकर आइए. आप भी कुछ इसी तरह की फिल्म जयेश भाई लेकर आए थे जो कि बहुत ही अलग तरह का टॉपिक, हम कहेंगे महिलाओं को लेकर आए थे. क्या कुछ उम्मीद है आज? मुझे बस एक अच्छी कहानी सुनने की उम्मीद है. अच्छे कलाकार हैं, मेरे बहुत पसंदीदा कलाकार हैं. सत्यजीत है, रेवती जी हैं, शीलादित्य ने प्रोड्यूस की है. सो मुझे जब मैंने ट्रेलर देखा तो एक आपको कहानी, एक ट्रेलर देख के उसके इंटेंशंस पता चलते हैं कि इंटेंशंस कितने प्योर हैं और इंटेंशंस हैं कि आपको बस एक एक्सपीरियंस बहुत ऑनेस्टली पेश किया जाए आपके सामने. और मुझे ये ऑनेस्टी इसके ट्रेलर से झलकी और वही ऑनेस्टी मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरी तरीके से अफेक्ट करे जब मैं फिल्म देखूँ. इस फिल्म का जो टॉपिक है वो भी काफ़ी अलग सा है. हम देख सकते हैं कि अवेयरनेस, क्या आपको लगता है कि कोई सोसाइटी में चेंज ला पाएगी? देखिए, एज फिल्म मेकर्स मुझे लगता है कि हमारा काम ये नहीं है कि हम सोचें कि सोसाइटी में कुछ चेंज लाना है. हम ऐसी कहानियाँ कहें जो हमको छूती हैं, जिसको कह के हमें कुछ हमारे अंदर बदलाव महसूस होता है और होपफुली वो कनेक्ट करेगा ऑडियंस से. जो अगर हमने प्योरिटी से फील किया है तो वो ज़रूर करेगा कनेक्ट. तो इसमें भी जो ग्रीफ की बात कही गई है, ग्रीफ डीलिंग की बात की गई है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लेखक ने लिखा हुआ है मुझे काफ़ी एक्सपीरियंशियल लगा, जो उनकी लिखावट है एटलीस्ट ट्रेलर से. तो या आई एम होपफुल कि ये हमारे दिल को छुए. पहले तो बदलाव तो बात की बात है. पर्सनल लेवल की बात की जाए तो ऑर्गन डोनेशन को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं आप? जी, मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि हर कोई जो है वो मुझे लगता है कि एक एनालॉजी है मेरे दिमाग में कि जब हम सेकेंड हैंड गाड़ी ख़रीदते हैं या हम कोई भी गाड़ी देखते हैं तो पहली बात पूछते हैं कि कितना देती है. हमारे हिंदुस्तान में ये टर्मिनोलॉजी है. तो मुझे लगता है कि ये शरीर भी एक गाड़ी है जिसको लेके हमने हमारी ज़िंदगी भर हमें सहायता करता है, हमारे हम जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचाता है. तो आई फील लाइक ये एक हमारे ऊपर मेहरबानी है कुदरत की और एक जो हमें ये दिया गया है ये शरीर, और इसका हर एक कण कण हमें पे फॉरवर्ड करना चाहिए कि किसी के और के काम आ सके और वो अपनी ज़िंदगी जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी सकें उसको लेकर.
तो ये पेड फॉरवर्ड साइकिल मुझे लगता है चलती रहनी चाहिए ऑर्गन डोनेशन। जी, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्योंकि काफ़ी सारी फिल्में हैं जो अभी बॉक्स ऑफिस पर चल रही है, कितनी उम्मीदें रखते हैं इस फिल्म को लेकर? जी, मैं तो ऑडियंस से दरख्वास्त करूँगा, मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा बेसिकली। लोगों को लगता है कि ऑडियंस सिर्फ स्पेक्टिकल देखने के लिए जा रहा है आजकल सिनेमा घर में। तो मेरे साथ जयेश भाई जोरदार के साथ एक इंसिडेंट हुआ कि मैं रिलीज़ के बाद 3 दिन मैं ऑफिस नहीं गया था, यशराज की ऑफिस। और 3 दिन बाद जब मैं ऑफिस गया तो हमारे एक अलग विंग में एक ऑफिस बॉय काम करता है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ। तो वो मुझे दौड़ा मिलने आया और मुझे कहता है कि ये पेंडेमिक के दौरान मतलब 2 साल हम लोग घर पे थे और पहली बार हम जयेश भाई जोरदार देखने गए एज अ फैमिली, वो उसकी पत्नी और 2 बच्चे। और उन्होंने मुझे कहा कि हम एक साथ बैठकर हम साथ हंसे, हम साथ रोए, और वो एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत प्रेशियस है बिकॉज हमने ये महसूस नहीं किया है पिछले 2-3 सालों में। तो मुझे लगता है कि दिल बड़ा होना चाहिए फ़िल्म का, हमें स्केल से उसको जज नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कलेक्टिव व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है, जो एक डार्क थिएटर में बैठ के एक स्ट्रेंजर्स के साथ एंजॉय करने का एक हंसी खुशी, एक रोना, एक कलेक्टिव ग्रीफ को महसूस करना, जो जो एक्सपीरियंस है वो आई थिंक आपको ओटीटी या मोबाइल फ़ोन आपको वो दे नहीं सकता। तो प्लीज़ ऐसी फ़िल्मों को सराहिए आप। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जैसे आप बड़ी फ़िल्मों को सराहते हैं, ये फ़िल्में भी बड़ी हैं, बड़े दिल वाली हैं, इनको भी देखनी चाहिए थिएटर में। मूवी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी देख कर आया हूँ एंड बहुत ही अच्छी मूवी लगी है, बहुत ही स्वीट ऑनेस्ट फिल्म है ये। एंड मैं यही गुजारिश करूँगा सबसे कि प्लीज़ ये देखिए, बिकॉज इस तरह की फिल्मों को देखकर भी सपोर्ट हमें करना चाहिए। और बिकॉज ये जो मैसेज अबाउट ऑर्गन डोनेशन है ये फिल्म में, वो देना चाहिए। ये सिनेमा में सर ऐसी मूवी नहीं आ रही है, सो आज ये मूवी आई है, लोगों को उसके बारे में आप कैसे राय देना चाहेंगे? हाँ, मैं वही कहना चाहूँगा, इट्स बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। तो मतलब रियल स्टोरी के ऊपर आधारित है एंड जिस तरह का वो एक मैसेज दे रही है, आई मीन वी शुड वॉच इट। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही यूनिक स्टोरी लाइन है, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जिसकी बहुत ज़रूरत भी थी। किस तरह से आप इस कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं? सी मैंने ना बहुत पहले, आज से 10-12 साल पहले अनिबन ने एक बुक लिखी थी, बॉम्बे रेंज बॉम्बे गर्ल्स करके। मैं जब कॉलेज में था मैंने वो बुक पढ़ी थी। मैंने पढ़ के राइटर कौन है ढूंढ निकाल के उनको चिट्ठी लिखी थी कि ये बहुत अच्छी बुक है एंड ऑल। एंड आफ्टर दैट मी एंड अनिबन लाइक वी काइंड ऑफ स्टेड इन टच। सो जब भी वो इंडिया आता था एंड मिलता था मुझसे एंड ऑल दिस थिंग। तो आज से 3-4 साल पहले वो इंडिया आया था, तो उसने मुझे जिस घटना पे ये फिल्म बेस्ड है, वो हमारे घर डिनर करने आया था, तो मुझे और मेरी वाइफ को उन्होंने सुनाया था। और सुनने के बाद ऑलमोस्ट लाइक हमारे पूरे आँख में आंसू आ गए थे लास्ट पे। एंड लाइक तो उस टाइम मैंने बोला था कि इस पे ये बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। उस टाइम एग्जैक्टली हमें ये नहीं पता था कि विल एंड अप मेकिंग द फिल्म, बट वो मतलब मे बी डेस्टिनी और व्हाटएवर। सो दैट्स हाउ लाइक इट हैपेंड। कैन यू टेक अस टू द शॉर्ट जर्नी कि किस तरह से इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया या फिर प्लॉट्स पे लेकर आए? कॉन्सेप्चुअलाइज ऐसे किया गया कि अनिबन वॉक्स अ लॉट विद ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑल. So he came across this story. He not came across this story. He actually came across these people, the two people on whose story this is based. And then उन्होंने बेसिकली एक आर्टिकल लिखा था पहले एक न्यूज़पेपर में वो करने के लिए. फिर वो आर्टिकल लिखते लिखते वो आर्टिकल बड़ा हुआ, उससे वो बनी. फाइनली वी एंडेड अप राइटिंग अ स्क्रीन प्ले. पहले हम किसी को ढूंढ रहे थे टू डायरेक्ट दिस फिल्म, जो है जो कर सके. फिर आफ्टर मतलब काफ़ी देखने के बाद फिर फाइनली हमें लगा कि मे बी since Aniban knows the story inside out, he has lived this story, so maybe he is the best person to tell this more. So initially he was a bit reluctant, but then he's such a sincere and hardworking guy, and like he went back to US and then उन्होंने classes ली, ये किया पूरा वो किया. When he came to India, he came back with almost like 5,000-7,000 drawings. Okay, कि एक एक उसका पूरा वो करते हुए वेरी वेल प्रिपेयर्ड. ही एग्जैक्टली नो व्हाट ही वांटेड एंड ऑल. सो मैंने बहुत फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के साथ काम किया है. सो द काइंड ऑफ क्लैरिटी अनिबन हैज, द काइंड ऑफ डायरेक्शन दैट ही गिव्स टू द एक्टर्स एंड ऑल, सो दैट आई थिंक फिल्म हैज कम आउट रियली नाइस. आप देखिए और बताइए. एज एन ऑर्गन डोनेशन, क्योंकि ये बहुत ही बहुत ही अलग तरह का टॉपिक है, क्योंकि इतना नॉर्मलाइज नहीं किया जाता है जैसे ब्लड डोनेशन को किया जाता है, प्रमोट भी नहीं किया जाता है. इसमें कितनी उम्मीद रखते हैं आप कि ये फिल्म आने के बाद लोगों का परसेप्शन चेंज होगा? आई थिंक मुझे
अगर हम लाइक थोड़े से लोगों का भी अगर जो ऑर्गन डोनेशन को लेके वो है उसको चेंज कर पाए तो देन वी थिंक दैट वी हैव बीन सक्सेसफुल इन वो। एक्चुअली लोगों को बहुतों को नॉलेज भी नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक सिनेमा इज़ लाइक कॉमन मैन्स मीडियम। तो अगर आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को एंगेजिंग एंटरटेनिंग तरीके से अगर बता सके तो आई थिंक मतलब ऑडियंस के लिए टेक होम कुछ होता है। सो वी होप सो दैट वी आर एबल टू चेंज द परसेप्शन सम पीपल, फ्यू पीपल एटलीस्ट। एज अ प्रोड्यूसर वी कैन सी कि बहुत सारी ऐसे कमर्शियल फिल्में आती हैं, बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं। इस फिल्म से कितना उम्मीद करते हैं एज अ प्रोड्यूसर? नहीं, सी द थिंग इज दैट कि मतलब हर फिल्म का एक अपना इकोनॉमिक्स होता है, अपना वो होता है। तो हमने एक राइट बजट पे ये फिल्म बनाई है, राइट एक्टर्स साथ उसके साथ अच्छे से मार्केटिंग प्रमोशन किया है। तो आई एम एक्चुअली क्वाइट होपफुल। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है इन्होंने। और सत्यजीत और रेवती मैम का काम बहुत अच्छा है, डायरेक्टर ने भी बहुत अच्छा काम किया। हाईली सेंसिटिव फिल्म एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड वॉच इट। ये साइड आ जाओ ना, ये साइड हम लोग उधर जा। चलो राधा हो गई मैम सेंटर में। हाँ आने दो। अच्छा ये एकत्र या एकत्र एक फोटो लिया। Let's go in front of the stand. I'm happy I क्या करेगा तू मैडम के? बोथ ऑफ यू क्लियर या सर अभी आपके राइट में एक मिनट। Yes, sure. 1 second. Come, let's. So much. सुबह से ऐसे ठंडी की तरह घूम रहा हूँ। हो गया? अभी I think it's going to take a while. Huh? Yeah, okay. Let's put on the tagline. It's okay. हो गया? Two points that I really showed them. One was when first one character tells her, listen, what kind of mother? Are you professional? And that was one place that he held me. It choked me and I was like, how is it going to translate on screen? I'm still looking forward to that. That is one thing. And the second thing is when he holds his brother. Hey Sheila.
Yes, let's start.